Now whatever endpoints we are having, how do we check it? We have to go to our Postman, and then I know this is my post API, correct? But now if I want to hit this post API, I have to enter all these parameters, correct? Same with this request param also. So if I don't have this Postman, then how will I test? Or how will I document my controller? What all post, get, put API it contains? So for that we have a utility called as Swagger. So we have a small documentation on that. I will just show you the documentation. Okay, so this is it. Yeah, are you able to see it? So first add this dependency in your form XML. So these 3 to 4 simple steps are there, not at all complicated. Control Shift F. Okay, save it. And now okay, this is my dependency. It is downloading the dependency, whatever it is downloading. So once first step is done, second step, make a in the config package, make a class by the name. So we have the config package, right? That make a new class Swagger config, and in Swagger config just add this method, add this bean method, open API custom, and annotate the class as configuration because it's a config class. Import everything. Okay, from where to import the Swagger? See, there are many packages, no? Info is from 1 to, there are 7 sources to get info, 6 sources. Info will be from where? IO Swagger v3, this one, okay? And add this as a configuration class, as a configuration. That's all. See, configuration class, and add this bean method. That's all. Okay. Now, if you want to give any documentation to any of the endpoints, you can put at operation over there. So let's go to the controller. So if you want to document anything, what is this doing? This is test API, right? So you can just document over there. Control Shift to import the operation, and just say test API. Just test. And then where you're actually doing the work, you can put over here. What is this doing? Add product by request parameters. So the summary and the description can be more or less the same. Description can be more detailed one if you want to add. Blah blah blah. It's up to you. This is all optional. This is all how well you document your controller. This is done. Yeah. Now the setting is completed. Okay. It conflicts with the controller advice. Okay. This, so it conflicts with the controller advice. So where is our controller advice? In the exception, right? So this Swagger conflicts with this controller advice. Let's try to check if it is running in the first instance. If it runs well and good, else I think it will conflict. So now what you have to do? On which port is our application running? 8083, 8083, correct? So just hit this endpoint on your browser. Just copy this, just change the port number and use Swagger-UI HTML. Okay. So just use that. So if application has started, okay, this we are tested, I guess, right? For the, so now let's try to hit this endpoint 8083, correct? See, it is conflicting with the, just comment this out.
I have saved it. Application has restarted, looks like. Okay, restarted. And now if you do a send, you will see all the endpoints have come over here. Okay, getting it? All the port, post, delete, everything has come over here. And whatever documentation we had done over here, it is showing over here. Add product by request param, right? So now if you want to test anything, so this is how we test in the real world. Okay, so if you want to test this one, okay, get product by base price greater than. So first you have to clear that API, then say try it out. Okay, and then you have to enter the base price as a path variable. Okay, see, it is showing. That is giving you the variable name also. So if I say over here 500 and I say execute, it will get me only those products that are greater than 500. Okay, these are the ones, right? These are more than 500. 599, 599, 599, 599. Okay, let's check more than 800. So say 800 and hit execute. So now no need for postman. Only these are, only this one is greater than 800. Okay, getting it? So like this, they what we do in the industry, we make our endpoints and then we publish these endpoints on the Swagger. So you can use Swagger to test your endpoints now. No need to check on Postman, and it will give you everything. So if I want to add by DTO, okay, it will give you a sample object also. Okay, so it will give you a sample schema like this. You can take this schema and say try it out. Okay, and then pass this as a request body over here, and then try to do a send. Let's execute this and check. See, it's added 36th object. Okay, like this you can use your Swagger to document your APIs. Making sense? You are allotted a task, let's say to create CRUD APIs, and create, read, update, delete APIs. Which APIs? And they have given you entity like product, and they have given you, so in the Jira ticket they will give you all the details. What is the entity name, what all it contains. ओके, तो क्या है, उसका प्रोडक्ट है और उसके साथ में अंदर क्या है, उसका रेटिंग है. तो आपको उसके एपीआई बनाने, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट. ओके, तो अभी आप क्या करोगे, आपके लोकल के ऊपर एक डेटाबेस बना दोगे, है ना, जो आपने भी बनाया है, स्प्रिंग बूट डीबी. तो अब ये, और उसका आपके पास यूज़र नेम है जो आपने जो सेट किया हो, पासवर्ड भी आपने सेट किया है, जो लोकल होस्ट का पोर्ट नंबर क्या है वो भी आपने सेट किया है. तो ये सब चल रहा है आपके लैपटॉप पे. तो आपके लैपटॉप को हम बोलते हैं लोकल एनवायरनमेंट. कौन सा एनवायरनमेंट? लोकल एनवायरनमेंट या डेवलपर एनवायरनमेंट, जो डेवलपर लोग का एनवायरनमेंट है. ठीक है, तो अभी आपका जो कोड चल रहा है वो कौन से चल रहा है एनवायरनमेंट पे? लोकल एनवायरनमेंट, या डेव. कुछ कंपनी डेव बोलती है, कुछ लोकल बोलती है. फिर आपने अपना जीरा टिकट का स्टोरी डाल दिया पहले प्रोग्रेस के अंदर, फिर आपने वो काम कर दिया. ठीक है, वो चला गया रिव्यू में, आपके टीम लीडर ने कोड देखा, कुछ कमेंट्स डाला उसने कि सेक्शन हैंडलिंग को थोड़ा सुधार लो, थोड़ा यहाँ इम्प्रूवमेंट कर लो, थोड़ा सा स्ट्रीमिंग एपीआईज यूज़ कर लो. आपने वापस कोड पे काम किया, वापस कोड पुश किया, उसने रिव्यू किया, अब उसको लगा कि ओके है, तो उसने उसको मर्ज कर दिया मेन कोड के अंदर. जो आपका ब्रांच था उसने मेन ब्रांच के अंदर मर्ज कर दिया. अब आपका जो कोड जो पहले रन हो रहा था आपके डेटाबेस पे, आपका यूजर नेम, पासवर्ड, इट वाज टेकिंग योर क्रेडेंशियल्स, अब वो कंपनी के टेस्ट एनवायरनमेंट पे टेस्ट किया जाएगा कि यहाँ पर सब बराबर चल रहा है क्या. ठीक है, तो टेस्टिंग आपका कोड को टेस्ट करेगी कि अभी हमारे एनवायरनमेंट में बराबर चल रहा है क्या. आपके लोकल में तो बराबर चल रहा था और हमारे यहाँ पर अभी चल रहा है, क्योंकि अभी हम लोग मल्टीपल डेवलपर्स का कोड कंपाइन करके करेंगे ना.
आपने एक एंड पॉइंट बनाया ऐड प्रोडक्ट, ठीक है, तो अभी आपको हिट कर रहे थे, आपको लो पोस्टमैन पे आंसर आ रहा है, आप तो अपने पोस्टमैन चेक करोगे ना, लोकली टेस्ट करोगे तो आपके पोस्टमैन में रिस्पॉन्स दे रहा है वो। अब यही ऐड प्रोडक्ट जब बाकी डेवलपर्स का कोड भी कंबाइन किया गया और यहाँ पर जब कर रहे हैं, अब यहाँ पर जब करेंगे तो डेटाबेस का नाम अलग होगा, है ना, तो टेस्ट डेटाबेस होगा, जो भी क्रेडेंशियल भी अलग होंगे, पासवर्ड भी अलग होगा उस डेटाबेस का, पोर्ट नंबर भी अलग होगा। तो फिर वो कौन से एनवायरनमेंट में टेस्टिंग हो रही है, कोई टेस्ट बोलता है, कोई क्यूए बोलता है इसको, कौन सा एनवायरनमेंट, क्वालिटी एनालिसिस। और जब टेस्टिंग में भी सब कुछ बराबर हो गया, फिर ये जो कस्टमर को यूज़ करने के लिए दे देते हैं, लाइव होस्ट कर देते हैं आपका प्रोडक्ट को, वो जाता है प्रोडक्शन में। कहाँ आता है, प्रॉड एनवायरनमेंट। प्रॉड में चला गया मतलब आपका प्रोडक्ट लाइव हो गया, कस्टमर उसको एक्सेस कर पा रहा है अभी। तो कुछ भी चेंजेस कस्टमर जो देख रहा है वो कहाँ से एक्सेस कर रहा है, प्रॉड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर सब सीनियर लोग ही काम करते हैं, सीनियर डेवलपर्स यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। जूनियर डेवलपर को लोकली ही सर्विस बनाने बोलते हैं, लोकल टेस्ट करने का पोस्टमैन पे और अपना कोड पुश कर देने का। सो अब जो है हम एक एप्लीकेशन को 3 अलग अलग डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं प्रोफाइलिंग यूज करके। क्या यूज करके, प्रोफाइलिंग। तो हमारे पास जो हमारी फाइल थी ना, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज है ना, तो उसके अंदर जो डॉट और प्रॉपर्टीज के बीच में, किसके बीच में, डॉट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अभी ऐसा करना, देखो डॉट और प्रॉपर्टीज के बीच में, ठीक है, एक हाइफन देने का, हाइफन पहले तो। अब हाइफन और डॉट के बीच में जो आप कीवर्ड लिखोगे वो आपका एनवायरनमेंट रहेगा। तो अगर आपने लिखा लोकल, तो अभी क्या हो गया आपका एनवायरनमेंट। और अगर फिर आपने लिखा टेस्ट, तो क्या हो गया अभी। और फिर आपने लिखा फ्रॉड, तो क्या हो गया ये। तो अभी आपको क्या करना है, आपकी जो प्रॉपर्टीज फाइल है उसको कॉपी पेस्ट करना है और 3 बनाना है। तो अभी ये क्या बनाऊंगा, बोलो उसको मैं, हाइफन लोकल, वापस कॉपी पेस्ट करूंगा, हाइफन टेस्ट, वापस कॉपी पेस्ट करूंगा, हाइफन फ्रॉड। तो अब जो है ये जो अपनी मेन प्रॉपर्टीज फाइल है, इसका सिर्फ काम रहेगा कौन से आपको प्रोफाइल पे काम करना है। तो अभी इसके अंदर कुछ भी कोड नहीं होगा, ये फाइल खाली रहेगी। इसको सिर्फ बताना है कि इसको कौन से प्रोफाइल पे राउट करना है। क्या करना है, कौन से प्रोफाइल। तो इसका सिर्फ एक एक 1 लाइन का कोड रहे, क्या रहेगा, डॉट प्रोफाइल डॉट एक्टिव। तो अगर मैंने एक्टिव कर दिया लोकल, तो का राउट कर देगी। तो यानी आपका पोर्ट नंबर ये है, आपका डेटाबेस ये है, यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये, ब्ला ब्ला ये, ठीक है। तो अब अगर मैंने कर दिया प्रोडक्शन, तो मैं उसको समझो टेस्ट को कर दिया 8084 और प्रोडक्शन को कर दिया 8085। तो हम 3 अलग अलग पोर्ट पे एक ही एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। हम चाहे तो 3 डेटाबेस अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आ गया मैं, तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपना कौन सा डेटाबेस था, ET001 स्प्रिंग बूट, यह था ना अपना डेटाबेस। अब मैं जाके बनाता हूँ ET001 लोकल, ठीक है, और ET001 टेस्ट। ये तो टेबल मांग रहा है, टेबल नहीं है चाहिए अपने को, डेटा भी मांगा तो टेस्ट और ET001 प्रॉड, है ना।
सो अब जो है हम कहाँ राउट कर रहे हैं अपने अपने इसको, लोकल। तो अभी इसका ये DDL ऑटो अपडेट है, ठीक है। तो अब जो है जब अपन ने इसको सेव किया तो देखते हैं अभी ज़्यादा है लोकल पे, ये रन हो गया। अब देखते हैं वो 2 टेबल बनी है क्या, लोकल पे वो 2 टेबल बनी है क्या, ठीक है। अपने वो ऐड किया था ना कॉलम, मॉडिफाइड ऐड किया, उससे कोई इशू ना आ जाए, ठीक है। लोकल पे जाके देखते हैं कोई टेबल बनी है क्या। टेबल तो कुछ भी नहीं बनी, 0 टेबल बनी है इसके अंदर, ठीक है। सो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ एप्लीकेशन का। अब हमारे जो ये था ना तुम्हारा एंटिटी का, ये एंटिटी है ना, तो सबसे पहले क्या करो, इसको पहले कमेंट कर दो। क्या कर दो इसको, ठीक है, चीज़ है डेट टाइम को कमेंट कर दिया। अब कोड को रन करो, राइट क्लिक करो, रन एज जावा एप्लीकेशन। अब देखना कि वो कहाँ शुरू कर रहा है, स्टार्टिंग एट कौन से पोर्ट पे और कौन से एनवायरनमेंट पे। देखो यहाँ दिखाएगा, देखो कंसोल पे, यू हैव टू बी विजिलेंट, कंसोल देखना, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाएगा, देखो वो कंसोल प्रोफाइल पे आया है, लोकल आया ना, करेक्ट, ठीक है ना। ठीक है, तो वो बन गया अभी। तो अब ये लोकल में 2 टेबल्स बन जाएंगे, करेक्ट, खाली टेबल्स। खाली दिखा क्यों नहीं रहा, उनने डेटाबेस का नाम चेंज नहीं करेगा, नॉनसेंस। पूरे डेटा का नाम ही चेंज नहीं करे, डेटा का नाम क्या है, ये है ना। अब जब यहाँ आउट करेंगे लोकल पे तो बोलेंगे डेटाबेस कौन सा वाला, ये वाला ना, तो वही वही बना, वही कर रहा है अपडेट वो। ओके, सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पर वो, अब जब रन हो गया तो अब देखो यहाँ पर जाके दो दो फाइल बना दिया ना, दिख रहा है। अभी इसमें कुछ है डेटा, खाली है, देखो ये भी खाली है, और जो रेटिंग है वो भी खाली है। अब देखो इसमें वो 2 कॉलम नहीं है, वो 2 कॉलम ऐड कर दो उसके अंदर। अभी कैसे ऐड करेंगे वो 2 कॉलम को, ये 2 डाल देंगे इधर, SQL में जाएंगे और वो 2 कॉलम ऐड कर देंगे, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ओके, और ये रन कर दिया, वो हो गया मॉडिफाइड। अब जाके उसको अनकमेंट कर देंगे, जो कमेंट अब ने किया था ना। ओके, सो अब अगर मैं पोस्ट करता हूँ कुछ भी, ठीक है। अब अगर मैं कौन से पोर्ट पे, लोकल कौन से पोर्ट पे जा रहा है, कौन सा पोर्ट है, 8083। तो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ पोस्टमैन पे, रेट कर रहा हूँ 8083 ऐड प्रोडक्ट बाय DTO, ठीक है। अब इसके बॉडी के अंदर ये है ना, सब बराबर है क्या, सेंड करता हूँ इसको, तो देखो ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप करोगे उसको तो वो इधर आ जाएगा, आ गया। ऐसे ही आप अपना इसको स्विच कर सकते हो कि भाई मैं टेस्ट एनवायरनमेंट पे काम कर रहा हूँ, तो वो कौन से पोर्ट पे होगा, कौन सा डेटाबेस होगा, वो सब आप टेस्ट कर सकते हो। अब यही अगर मैं 8084 पे डालूँ, तो यही चीज़ अगर मैं 8084 पे डालूँ तो कहाँ जाएगा वो, इस डेटाबेस में आएगा ना। तो
पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो पहले मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा किस में, टेस्ट पे। ठीक है, अब मैंने देखो टेस्ट पे स्विच कर दिया, मेरा रिस्टार्ट हो गया एप्लीकेशन। तो अब अगर मैं बोलूँगा कि 8084 ऐड पड़ा डी टी, तो कहाँ जाएगा वो? 37 वाला कौन सा गया वो? 37 वाला गया है ना? यस और नो? ऐड प्रोडक्ट बाय डी टी, कहाँ गया वो? प्रोडक्ट कंट्रोलर, ऐड प्रोडक्ट बाय डी टी। अपना रिस्पॉन्स क्या था इसके अंदर? रिक्वेस्ट डी टी, और रिस्पॉन्स क्या होगा? तो वो तो नहीं, रिस्पॉन्स तो नहीं जा रहा है, क्योंकि प्राइमरी की दिखा रहा है उधर, वो प्राइमरी की नहीं दिखना चाहिए अपने को। तो क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स क्या होगा? तो यही हम लोग यहाँ डाल देंगे, तो खाली जगह पर मालूम है कि कौन से टाइप का, तो डायरेक्ट डाल देंगे ना अपन। ठीक है, क्योंकि ये जो रिटर्न कर रहा है ऐड प्रोडक्ट, वो ऐड प्रोडक्ट डी टी रिटर्न कर रहा था ना। देखो ऐड प्रोडक्ट बाय डी, ऐड प्रोडक्ट जिसको हमने ये पास किया था रिक्वेस्ट डी टी, उसने क्या किया, रिस्पॉन्स में क्या दिया हमको, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डी टी दिया ना, तो अपन वही रिटर्न करेंगे ना अपन फिर। ठीक है, तो अभी मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, ताकि अभी मेरा जो कस्टमर को मुझे आईडी नहीं दिखाना ना, आईडी मेरा प्राइमरी की का क्या क्या नाम है, मुझे एक्सपोज नहीं करना है उसको। अभी देखो, अभी सेट करूँगा, अब देखो, अब आईडी नहीं आएगा। कैसे आ रहा है आईडी अभी? ऐड प्रोडक्ट बाय डिटेल हिट कर रहा हूँ मैं। अब तो लोग अपना अपने वाला ही कर लेना। तो रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स में आ रहा है रिस्पॉन्स डी टी ओ। प्रोडक्ट रिस्पॉन्स किधर है? प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डी टी ओ में आईडी, आईडी क्यों डाला, आईडी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आईडी दिखाने की ज़रूरत नहीं है अपने को। प्राइमरी की और वो जो थे ना एक्स्ट्रा कॉलम जो अपने, उसको अपने इंटरनल यूज़ के लिए है। ठीक है, वो निकाल दिया इसमें से। गेटिंग इट? तो ऐसे आप अपने एक एप्लीकेशन को प्रोफाइलिंग यूज़ करके मल्टीपल जगह राउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज फाइल का दूसरा अल्टरनेटिव है YAML फाइल। क्या है? YAML, they ran out of names, so they are giving such names now. क्या नाम है? तो व्हाट इज एक्सटेंशन? ठीक है, तो ये क्या है, ये थोड़ी ये ना ट्री स्ट्रक्चर है। क्या ये ट्री स्ट्रक्चर, जैसे पेरेंट होता है ना, पेरेंट चाइल्ड, तो ये पेरेंट है, ये उसके चाइल्ड है, ऐसा वो जो स्ट्रक्चर में थोड़ा रखती है, तो इससे बहुत सारा कोड डुप्लीकेशन निकल जाता है। ठीक है, तो अपनी प्रॉपर्टीज फाइल फ्लैट फाइल है। प्रॉपर्टीज फाइल क्या है? फ्लैट फाइल है। ठीक है, तो अब देखो प्रॉपर्टीज फाइल में देखो, जब हम लोग ये स्टोर कर रहे थे सर्वर, और ये देखो स्प्रिंग कितना बार आ रहा है, स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, स्प्रिंग डॉट, है ना? स्प्रिंग कितने बार आ रहा है? इसमें क्या होगा, YAML में क्या होगा, YAML में स्प्रिंग एक बार आएगा। ठीक है, फिर 4 स्पेस आते हैं, 1 2 3 4 स्पेस आते हैं, फिर डेटा सोर्स एक बार आएगा, फिर 4 स्पेस आएंगे उसके बाद, ऐसा वो खुद ही करता है। अब क्या बचा उसके बाद? ड्राइवर। ठीक है, अब देखो स्प्रिंग के बाद में क्या है, एप्लीकेशन, तो स्प्रिंग के बाद में डेटा सोर्स भी है, स्प्रिंग के बाद कौन है? एप्लीकेशन भी है ना।
एप्लीकेशन और डेटा सोर्स दोनों भी स्प्रिंग की चाइल्ड है ना, तो इसके लिए स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, ठीक है। और डेटा सोर्स का चाइल्ड कौन है, तो एस है। तो उसके बाद ये चार, यहाँ पर चार स्पेस और फिर यहाँ पर चार स्पेस डेटा सोर्स आ जाएगा, है ना। जब इस तरह आप करोगे स्टोर तो वो हो जाएगा YAML फाइल। तो अपने पास कन्वर्टर होते हैं, कन्वर्टर देखो अभी मैं ये डेटा लूँगा और मैं डाल दूँगा कन्वर्टर पे डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट डाल दूँगा कन्वर्टर। क्या कन्वर्टर, अभी जो डेटा है वो किस में, प्रॉपर्टीज में ना, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है ना, और मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको, तो प्रॉपर्टीज टू YAML कन्वर्टर, देखो ये है प्रॉपर्टीज टू YAML कन्वर्जन है। आप सिर्फ ये अच्छा है, मस्जिदों वाला अच्छा है, ये जो है ना दूसरा वाला, ये वाला अच्छा है मस्जिदों वाला, जावा ब्रेन मैंने कभी ज़्यादा देखा नहीं है, ये वाला अच्छा है, सब लोग ये यूज़ करते हैं। देखो अब इसने ये क्या बोल रहा है, क्या करना है आपको, कन्वर्ट टू YAML का टू प्रॉपर्टीज, मुझे करना है टू YAML, तो मैंने ये कोड डाल दिया, ठीक है। अब उसको मैंने कर दिया टू YAML पे, तो देखो आ गया डेटा सोर्स। तो देखो स्प्रिंग डेटा सोर्स ड्राइवर क्लास नेम, स्प्रिंग डेटा सोर्स यूजर नेम, स्प्रिंग डेटा सोर्स URL, स्प्रिंग डेटा सोर्स पासवर्ड, है ना। तो एक ही बार आ जाता है वो पूरा। तो आप चाहो तो ऐसा भी यूज़ कर सकते हो, तो ऐसा भी आप स्टोर कर सकते हो। आपको सिर्फ चेंज करना है आपके एक्सटेंशन का नाम। तो अभी मैं गया रिसोर्सेज में गया, राइट क्लिक किया, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसी फाइल को कॉपी पेस्ट करके YAML करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, लोकल डॉट YAML या YML दोनों भी सेम है, ठीक है। YAML डाल दिया और अभी ये कोड कॉपी किया और YAML के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो आपको YAML से करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, दोनों भी सेम, ठीक है। अब मैं लोकल प्रॉपर्टीज़ को कमेंट कर रहा हूँ, देखो लोकल वाली प्रॉपर्टीज़ है ना, उसको कमेंट कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब अगर मैं राउट कर रहा हूँ लोकल पे तो सारी सेटिंग कहाँ से लेके आने वाला है, सारी सेटिंग कहाँ से रीड करने वाला है वो, लोकल लोकल, क्योंकि लोकल प्रॉपर्टीज कुछ भी, लोकल प्रॉपर्टीज तो है ही नहीं ना, लोकल YAML से सर्च कर ले। और डेटाबेस ये सब देखो वो स्टार्ट कर रहा है, देखो अभी अगर मैं स्टॉप भी कर दूंगा ना, तो अभी देखो कैसे स्टार्ट करेगा। तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, कौन से पोर्ट पे, अगर मैंने यहाँ पर 8089 कर दिया तब देखना अब यहाँ से शुरू करेगा वो, तो वहाँ से रीड करेगा सारे प्रॉपर्टीज फीचर रीड करेगा वो YAML फाइल्स। देखो बताएगा अभी कि कौन सा आप प्रोफाइल यूज़ कर रहे हो, दिख रहा है, पूरा प्रोफाइल है लोकल, और कौन से पोर्ट पे आया है नीचे दिखाएगा, कौन से पोर्ट पे आया, आया क्या नहीं। तो आपके ऊपर है कि आपको क्या कंफर्टेबल लगता है। आप इस पे कैसे थोड़ा स्पेसिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अपने को जो होता है वो खुद ही इनबिल्ट स्पेस देता है वो, थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा तब वो इश्यूज करना शुरू करता है क्रिएट। तो इट्स अप टू यू गाइस, ओके। सो दिस वाज idea of the real world I wanted to give you all, Swagger, profiling, YAML, so that you all bring this into your practice